Hello everyone, welcome to Rotab. My name is Santosh and today we are going to start the discussion of the paper 2 of the phase 2 that has been asked in the year 2020. So paper 2 basically consists of all the subject components, that is your accountancy, costing, finance, management, Companies Act and your economics as well. Right? So paper 2 becomes very important from the examination point of view and you need to evaluate yourself as well to determine in what level you are currently in terms of your preparation level, right? So without delaying further, let's directly jump to the first question and you have to do all these questions with me, right? And you have to evaluate yourself. Okay, so the first question says if the demand curve is negatively sloped, then law of demand says that quantity demanded is related with what? So first of all you need to understand कि law of demand होता क्या है, then we will be able to do this question ना. So law of demand is very simple. It says that price and the quantity demanded are inversely proportional. So it says that suppose this is x-axis, not suppose, it is actually an x-axis and this is y-axis, and if we plot price on the y-axis and number of quantity demanded on the x-axis, the slope will be negative. It will be negatively so sloped. Why? Because when we increase the price, quantity demanded will be less, and if we decrease the price, suppose this is P0 and this is P1 and this is Q0 and this is Q1, right? This is Q1 and this is Q0. So when the price on the lower side, the quantity demanded is high for that product. But for the same product, if we increase the price, then what is going to happen? Quantity demanded is going to decrease. So that's what law of demand says, and that's why it is this demand curve is negatively sloped, not positively sloped, right? So question says if demand curve is negatively sloped, we know that it is getting depicted through this graph. It is negatively sloped, but question is asking you about the what this demand law of demand basically convey you the relationship between which two variables. So one variable is quantity demanded and another variable will be price of the commodity itself, right? So the correct answer here is option number B, not the market, not the people. So the correct answer of this question would be option number B, that is price. Let's jump to the second question. It says Phillips curve is the relationship between which two variables? Okay, so see, Phillips curve is also defining the relationship between two variables, and these two variables are inflation and the unemployment. So again, if I try to map it in the graph, and suppose I'm going to take unemployment here in the x-axis and your inflation on the y-axis, again it will be negatively sloped like this. So it represents that if inflation is increasing, unemployment is going to decrease, and if inflation is decreasing, your unemployment is going to increase. Why? See, इन्फ्लेशन एक साइन है ग्रोइंग इकोनॉमी का. इन्फ्लेशन क्यों होता है? जब डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड क्यों बढ़ती है? जब हमारे पास पैसे हैं, जब मतलब एज एन इकोनॉमी, एज एन मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझेंगे हम इसको कि अगर इकोनॉमी में पैसा है तो हम लोगों के पास कमोडिटीज़ खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसे हैं, तो हम लोग ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं, डिमांड को इंक्रीज़ कर रहे हैं. तो अब मैन्युफैक्चर साइड को क्या करना पड़ेगा? इस डिमांड को कोप अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी. सो वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे ना, तो एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो डिक्रीज हो जाएगा. तो इन्फ्लेशन इज नॉट अ बैड साइन. प्लीज रिमेंबर दिस, इन्फ्लेशन इज अ गुड साइन. ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन 15% 20% हो गया तो इट इज़ अ गुड साइन. इन्फ्लेशन बिटवीन like 5 to 8%, 7%, right? This is a good sign. Even if the inflation is 2 or 3% ना, तो it is signifying that your economy is getting stagnant. मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत कम है. जस्ट लाइक इन द यूएसए वी हैव, हमारे पास अमेरिका में क्या है ना, इन्फ्लेशन ऐसे नहीं है कि 6% 7%, जस्ट लाइक वी हैव इन द इंडिया. हमारे इंडिया में क्या होता है 7%, अराउंड 7% इन्फ्लेशन इट इज़. तो इसका मतलब एक ग्रोइंग साइन है. डिमांड लोग क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा है, इकोनॉमी रुकी नहीं हुई है, इट इज़ ग्रोइंग कंटिन्यूसली. अब हम पे डिस्पैरिटी की बात नहीं करेंगे, वो बात अलग है कि हमारे वहाँ जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, जो गरीब है बहुत गरीब है, वो अलग चीज़ है. अभी हम पर कैपिटा इनकम में नहीं आ रहे हैं, अभी हम ओवरऑल एग्रीगेट की बात कर रहे हैं. पे डिस्पैरिटी तो बहुत ज़्यादा है, मतलब पर कैपिटा इनकम में तो बहुत ज़्यादा इंडिया लैग करता है. इनफैक्ट बांग्लादेश से भी पीछे है.
अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो। बट अभी इसकी बात करते हैं कि मैक्रो टर्म्स में, एग्रीगेट के टर्म में बात कर रहे हैं। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है तो इट इज़ अ साइन ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है। और इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा एक लेवल तक, ठीक है। तो इसका मतलब है फिलिप्स कर्व क्या समझाने की कोशिश करता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए इटसेल्फ, इन्फ्लेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो फिलिप्स कर्व इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट. So your correct answer is option number A. Now let's move to the third question of the day. From the following, select correct phases of the business cycle. तो business cycle क्या होती है, ये भी इकोनॉमी पे ही डिपेंड करती है। कह सकते हो, मतलब एक इंडिविजुअल फर्म की भी बिजनेस साइकिल होती है और इकोनॉमी की भी बिजनेस साइकिल होती है। तो इकोनॉमी की जो बिजनेस साइकिल है वो ऑब्वियसली बात है माइक्रो फैक्टर्स को तो इफेक्ट करेगी ना, इम्पैक्ट करेगी। अगर इकोनॉमी ही ग्रोइंग स्टेज में है तो जो फर्म्स होंगी उस इकोनॉमी में या फिर जो कंपनीज होंगी वो भी तो ग्रो करेंगी। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज इज गोइंग टू ग्रो, राइट। सो पहले समझते हैं कि बिजनेस साइकिल क्या होती है, तब हम क्वेश्चन को रिकंसिडर करते हैं। तो ये हमारे फेज हैं बिजनेस साइकिल के। फर्स्ट इट इज एक्सपेंशन, दिस इज द एक्सपेंशन फेज। तब आएगा एक पीक, जैसे प्लेयर्स का पीक होता है और ग्रोइंग स्टेज होता है, फिर रिसेशन होता है, सेम वी हैव इन दी business cycle concept. तो first we have the expansion phase, then we have the peak phase, जब इकोनॉमी पीक पे होगी या फिर कंपनी पीक पे होगी, then we have the recession. और रिसेशन में क्या होगा, डिमांड कम हो रही है, अब प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो रही है, ठीक है। रिसेशन में क्या होता है, डिमांड अब कम हो रही है, अब ग्रो नहीं कर रहा है, अब रिसेशन आ गया है। बट रिसेशन से भी डेंजर लेवल है डिप्रेशन का। ये जो ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया था 2008 के टाइम पे, वो है एग्जाम्पल। तो इस टाइम पे तो क्या होता है, मतलब इसका इंटेंस्ड फॉर्म है, ये समझ लो। डिमांड तो कम हो ही रही थी, अब तो बहुत ही डिक्रीज करने लग जा रही है, ठीक है। तो लोगों के पास है ही नहीं, पैसा ही नहीं है लोगों के पास, तो ये एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो ये डिप्रेशन की स्टेज है। तो रिसेशन तब भी कोप अप हो जाती है, पर डिप्रेशन के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट को इन्फ्यूज़ करने पड़ते हैं बहुत सारे फंड, जैसे बजट वगैरह होते हैं ना। तो यही ये हमारे कीन्स ने भी दिया था थ्योरी। कीन्स इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में। तो रिसेशन आया, रिसेशन के पास डिप्रेशन, ज़रूरी नहीं कि ये आए ही आए, ठीक है। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर रिसेशन जनरली होता है। अच्छा, डिप्रेशन के बाद हमारा आ गया ट्रफ, एकदम बॉटम स्टेज। तो अब यहाँ से रिकवरी होना इकोनॉमी चालू कर देगी। देन वी हैव द रिकवरी स्टेज, रिकवरी फेज, देन अगेन द एक्सपेंशन, पीक एंड द रिसेशन, राइट। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द phases of the business cycle. So the correct phase, most appropriate we have to use. So first option says expansion, then comes the peak, then recession. So sequence सही लग रहा है यहाँ तक, then trough and then recovery. So this sequence is correct, but let's read out the other option as well to know the most appropriate answer, ठीक है। recession के बाद trough and recovery expansion नहीं, गलत है, ठीक है। trough के बाद recession आ नहीं सकता तो गलत है। recovery expansion recession trough नो, recession एंड एक्सपेंशन नहीं, क्योंकि रिसेशन के बाद तो पहले डिप्रेशन आएगा फिर ट्रफ आएगा। अगर डिप्रेशन नहीं भी है तो रिसेशन के बाद क्या आएगा, ट्रफ आएगा। तो ये भी सीक्वेंस गलत है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, आई थिंक। या सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक्सपेंशन, यू हैव एक्सपेंशन, देन यू हैव द पीक, देन यू हैव द रिसेशन। सो एक्सपेंशन के बाद रिसेशन आया, पीक इनने स्किप कर दिया, दैट डजंट मैटर। डिप्रेशन नहीं आएगा तो ट्रफ आएगा, ट्रफ के बाद रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर. Now let's talk about the question number 4 that says calculate the amount of net profit from the following. It says Nifty option contract has 75 shares per lot. एक लॉट में ऑप्शन पता है ना, ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। अब ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बाय कर रहे हो ये आपके ऊपर है। कॉल ऑप्शन कर सकते हो बाय, या पुट ऑप्शन कर सकते हो। कॉल ऑप्शन में होता है कि आप कभी भी खरीद सकते हो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस में। कॉल, यू कैन कॉल इट एनी टाइम, ठीक है, फॉर अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। पुट ऑप्शन का मतलब मैं पुट कर दूंगा, मैं मेरे पास सेल करने का ऑप्शन है। अगर मैं पुट ऑप्शन खरीद रहा हूँ इसका मतलब है मेरे पास शेयर्स को सेल करने का ऑप्शन है। देखो लॉजिकली समझना, टर्मिनोलॉजी से ही समझ में आती सारी बात, बहुत ज़्यादा टेक्निकल इन सब में है नहीं। फाइनेंस में, आरबीआई में, इनफैक्ट इन द सेबी इटसेल्फ उतना ज़्यादा हाई लेवल की फाइनेंस नहीं है। वर्ड्स पे ध्यान दोगे, टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान दोगे तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये नहीं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, उतनी टफ आती भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन है खरीदने का कभी भी शेयर्स को। पुट ऑप्शन क्या है, हमारे पास कभी भी ऑप्शन है शेयर्स को बेचने का, ठीक है।
सो निफ्टी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें एक लॉट में 75 शेयर्स हैं। अ पर्सन बॉट अ कॉल ऑप्शन खरीदा है उसने ऑन निफ्टी फॉर 10 लॉट्स, तो मतलब कि टोटल शेयर हमारे पास 750 का कॉल ऑप्शन खरीदा है उसने, ठीक है, पर्सन ने। द प्रीमियम पर शेयर वॉज 50। प्रीमियम होता है, अब ये सब समझाऊंगा नहीं मैं, अभी क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। प्रीमियम ये होता है, चलो थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ कि जब हम ऑप्शन खरीदते हैं तो हमको सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है, हमको पूरी शेयर की प्राइस नहीं देनी पड़ती है। अगर कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे तो उनको पता होगा। ऐसा होता है ना कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर शेयर मान लो 100 रुपये का है और मैं कॉल ऑप्शन खरीदा हूँ 10 रुपये का, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 1000 रुपये देने हैं। बात समझना, मुझे सिर्फ प्रीमियम देना पड़ेगा। उस कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि वो शेयर्स तो एडजस्ट हो जाएंगे बाद में अपने आप ही, खरीद के बिक जाएंगे वो। अभी सब टेक्निकल में नहीं जाऊंगा अभी मैं, अभी तो समझो कि हमें प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है। किस दिन शेयर मार्केट की क्लास लेंगे तब बताऊंगा। अच्छा, तो प्रीमियम पर शेयर कितना है? 50 है। ही एग्जिटेड द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द प्रीमियम पर शेयर वॉज ₹80। तो उससे कितने का प्रॉफिट हो गया? 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया प्रीमियम पे ही, ठीक है। प्रीमियम, अब उसने उस कॉल ऑप्शन को ना एग्जिट कर दिया। कॉल ऑप्शन पहले उसने 50 की प्रीमियम पे खरीदा था, अब उसने वो एग्जिट कर दिया 80 में। तो उसका जो बेनिफिट है बेसिकली वो 30 रुपीज़ का आ रहा है पर शेयर का। प्रीमियम पर शेयर वॉज ₹50, खाली प्रीमियम पे करना पड़ता है। 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया उसको पर शेयर में। और टोटल शेयर कितने थे? 750, इजंट इट, है ना? ये क्या लिखा हुआ है मैंने? 75 इंटू 10, हाँ ठीक है, 750 तो थे, तो 30 इंटू 750 करोगे इतना प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट थिंग इट इज सेइंग दैट इन दी होल ट्रांजेक्शन हिज टोटल एक्सपेंस पर ₹225। तो 225 माइनस कर देना, ठीक है। आप कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना, 75 का डबल कर दोगे 150 आएगा, 150 में फिर से 75 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 225। तो कितना जाएगा? 225 और 2 जीरो रख दोगे। अगर -225 करोगे इससे तो कितना आएगा? 500 से 200 माइनस करोगे तो 2000 275 आ जाएगा, क्योंकि 300 माइनस करोगे तो 300 आता है, 25 और माइनस कर दोगे तो 22,275। तो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी। यस इट इज। ठीक है, बात समझ में आ गई। आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाएगा। अगर ऐसे न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो कर लेने चाहिए, अगर इजी है इस तरह के, इसमें ज़्यादा लॉजिक और बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन भी थी नहीं, ठीक है। वैसे तो कैलकुलेटर मिलता है, अगर नहीं हो पा रहा है हाथ से जल्दी तो कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है। Let's move ahead. This is the solution. We have already discussed the solution. Let's come to the question number 5. It says, if a hotel provides complimentary breakfast to its guest, then what kind of supply is this in the context of GST? तो GST के बेसिक भी पता होनी चाहिए क्या है। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कॉम्पोजिट और मिक्स्ड में। बेसिकली जो बंडल सप्लाई होती है ना, बंडल सप्लाई होती है GST कॉन्टेक्स्ट में, वो दो तरह की, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। तो मैं इसका डिफरेंस बता देता हूँ, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग। मान लेते हैं कि मिक्स सप्लाई का पहले एग्जांपल ले लेता हूँ। आप दिवाली में गिफ्ट दे रहे हो किसी को, ठीक है। अब आप शॉप पे गए, आपने क्या लिया? पेप्सी की कैन ले ली, एक पेप्सी की कैन ले ली, और बाकी 10 रुपये की इसमें पाउच डाल दिया नमकीन का, और आपने चॉकलेट डाल दी 10 रुपये की। कैन थी आपकी, मान लेते हैं 70-80 रुपीज़ की, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक पैक बना लिया, छोटा टॉफ़ीज़ डाल दी, कैंडीज़ डाल दी, तो इस तरह आपने इस तरह से क्या बना लिया? एक पैक बना लिया, गिफ्ट बना लिया। अब ये मिक्स सप्लाई है, क्यों? ये मिक्स सप्लाई इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स आपने लिए हैं वो इंडिपेंडेंटली भी सोल्ड हो सकते हैं, सेल हो सकते थे, ठीक है। वो एक नेचुरली बंडल्ड नहीं है, जो हमने जो किया काम ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। सर ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नेचुरली बंडल्ड है, कौन सा नहीं है? जब कस्टमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है, और जब इंडस्ट्री के नॉर्म से बोलते हैं कि एक नेचुरली एक इंडस्ट्री के नॉर्म ये बोल रहे हैं कि इसको हम एज अ बंडल ही बेचने वाले हैं। फॉर एग्जांपल 5 स्टार होटल में क्या होता है कि 5 स्टार होटल क्या, नॉर्मल होटल नहीं, 5 स्टार होटल में ये होता है कि लॉन्ड्री सर्विस दी जाती है रूम के साथ। ऐसा होता है, ये इंडस्ट्री का नॉर्म है अगर 5 स्टार होटल है तो, ठीक है। तो इस टाइम, अगर उस टाइम पे हम 5 स्टार होटल, अगर ये बंडल उनके लिए नेचुरली बंडल्ड है, क्या? रूम मतलब एकोमोडेशन साथ में लॉन्ड्री सर्विस, ये नेचुरली बंडल्ड हो गया। तो उस केस में वो कॉम्पोजिट सप्लाई हो गई। तो वो जब जीएसटी निकालेंगे ना, तो कॉम्पोजिट सप्लाई के अकॉर्डिंग निकालेंगे जीएसटी का रेट। वो बताऊंगा मैं कैसे निकालते हैं। अभी ये समझो कि कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में डिफरेंस क्या है।
जब कोई चीज़ नेचुरली बंडल्ड होती है, और नेचुरली बंडल्ड कैसे कैसे समझोगे? इंडस्ट्री की नॉर्म के हिसाब से, या कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से। तो जब भी हम नॉर्मल भी होटल लेते हैं, चलो 5 स्टार होटल नहीं भी है, नॉर्मल भी होटल लेते हैं, तो इंडस्ट्री का नॉर्म ये है, जनरली ये है, और ये हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम नाइट स्टे कर रहे हैं तो सुबह का ब्रेकफास्ट हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है ना, जनरली मिलता है। तो ये भी कैसी सप्लाई हो गई? मिक्स सप्लाई हो गई, कंपोजिट सप्लाई हो गई। ये हो गई हमारी कंपोजिट सप्लाई, ठीक है? मिक्स सप्लाई का मैंने एग्जांपल दे दिया था, कैन वाला। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ अ होटल प्रोवाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट टू इट्स गेस्ट, अरे क्वेश्चन ही है ये, ठीक है? तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, क्योंकि ये नेचुरली बंडल्ड है, या फिर कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है, या फिर कह सकते हो इंडस्ट्री का नॉर्म है ये, कि नेचुरली बंडल करके इसको सेल करना है, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। But the thing here that you should be remembering is what should be the tax applied in case of composite supply and in case of mixed supply। ये क्वेश्चन अब आ सकता है। अभी तक क्या समझा हमने? अभी तक क्वेश्चन क्या है? अब जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चन थोड़ी रिपीट होंगे, उससे एक एडवांस वर्जन में होगा ना। तो ऐसे ही नहीं करते हैं कि खाली पीवाईक्यू कर लिया, उसके आगे जाओ थोड़ा सा, और जब पढ़ोगे तो और आगे जाना पड़ेगा ना। तो अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि टैक्स रेट क्या अप्लाई होगा, मतलब अगर मिक्स सप्लाई है तो टैक्स रेट क्या अप्लाई होगा, और अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है तो क्या टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर पहले बात करते हैं कंपोजिट सप्लाई की, ठीक है? तो ये पढ़ा दिया मैंने क्या होता है, और नेचुरली बंडल्ड भी मैंने पढ़ा दिया क्या होता है, इसलिए हम डायरेक्ट इस पे आ रहे हैं कि व्हाट टैक्स रेट शुड बी अप्लाइड। सो द टैक्स रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, ध्यान देना, प्रिंसिपल सप्लाई विल अप्लाई ऑन द एंटायर सप्लाई। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, कोई कंपनी है सप्लाई ऑफ गुड्स कर रही है, अब उसमें शिपिंग की कॉस्ट भी है, इंश्योरेंस की कॉस्ट भी है, बट प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? गुड्स की सप्लाई प्रिंसिपल है ना। तो इसका मतलब है, अब इंडस्ट्री के नॉर्म थे कि उसको ट्रांसपोर्टेशन करना था, इंश्योरेंस देना था, बट यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई है क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स। इसलिए जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो प्रिंसिपल सप्लाई पे ही होगी, दैट इज योर जीएसटी ऑन गुड्स, दैट इज योर जीएसटी ऑन दैट गुड। जो लगेगा वो पूरी जो पूरा पैकेज है उस पे जीएसटी वही होगा जो गुड्स पे जीएसटी था। तो इंश्योरेंस का अलग से जीएसटी नहीं देना होगा, ट्रांसपोर्टेशन का अलग से जीएसटी नहीं होगा, जो पूरा पैकेज है उसका जो जीएसटी रेट होगा वो किससे डिसाइड होगा? जो प्रिंसिपल सप्लाई थी, और हमारे केस में क्या था? वो गुड्स था, क्योंकि गुड्स ही तो पूरी प्रिंसिपल सप्लाई है ना, गुड्स ही तो भेज रहा है वो हमको, सप्लायर हमको भेज रहा है गुड्स, तभी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट भी लग रही है, पूरा पैकेज दे रहा है ना साथ में हमको। लेकिन जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो तो क्या है? गुड्स है, ठीक है? बात समझ में आ गई कि कंपोजिट सप्लाई में क्या होगा? जो प्रिंसिपल हमारा कंपोनेंट है उसका जीएसटी ही पूरे सप्लाई पे लगेगा। अब बात करते हैं मिक्स सप्लाई की। मिक्स सप्लाई में होता क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं, अब बात करते हैं कि टैक्स रेट क्या लगेगा मिक्स सप्लाई में। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि मिक्स सप्लाई में टैक्स रेट क्या होगा, या फिर कंपोजिट सप्लाई में क्या होगा। मिक्स सप्लाई ईजी है, दिवाली गिफ्ट वॉउचर का एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब यहाँ पे वो टैक्स रेट लगेगा जो हमारे बंडल में, मतलब अननेचुरल बंडल में जिसका टैक्स रेट हाईएस्ट होगा, उसका टैक्स रेट हम पूरे बंडल में लगा देंगे। ध्यान दो, बात समझ में आई? दिवाली का गिफ्ट बॉक्स था, उसमें सबसे जो महंगा आइटम था, मान लेते हैं कि वो कैन पेप्सी थी। अब जो कैन पेप्सी का जो जीएसटी रेट है वही पूरे बंडल पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो मिक्स सप्लाई तो बड़ा आसान था कि जो हाईएस्ट जीएसटी रेट होगा वही पूरे बंडल में अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे समझा दिया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द स्पेशल ऑडिटर, ये क्वेश्चन इररिलेवेंट हो गया अब, क्योंकि ये 19 जो पहले वाला एक्ट था ना 1956, उस वाले में, कंपनीज एक्ट 1956 में, उसमें रिलेवेंट था। 2013 में कुछ स्पेशल ऑडिट की बात ही नहीं हुई है, तो ये इररिलेवेंट है, इसको पढ़ो ना पढ़ो एक ही बात है। बट इसका आंसर फिर भी देख लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, लेकिन 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग है। अभी इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है बेसिकली इस क्वेश्चन की। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन द कैश बजट। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। कैश बजट क्या होता है? अच्छा, बजट क्या होता है? पहले बजट ये होता है कि हम फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हम एक्सपेंसेस कितने करेंगे और इनकम्स कितनी होंगी, यही तो कर रहे हैं कि। या फिर सेल बजट ले लो, सेल बजट में क्या करते हैं कि सेल कितनी होने वाली है, ठीक है? टोटल बजट में करते हैं कि एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं, इनकम कितनी होने वाली है, प्रॉफिट, सब कुछ देखते हैं ओवरऑल बजट में। कैश बजट की बात कर रहा है, कैश बजट में ये देखेंगे या इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि व्हाट शुड बी दी
inflow of cash and what should be the outflow of cash for a particular period, right? So that is what your cash budget is. ठीक है, तो question is asking you about which of the following does not appear in the cash budget. So cash budget में as I have discussed with you कि only cash items would be considered. ठीक है, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तो कंसिडर करेंगे, तो ये आंसर नहीं होगा. डेप्रिसिएशन कहाँ से कंसिडर कर देंगे? डेप्रिसिएशन कैश आइटम है क्या? नहीं है ना, वो तो असेट की वैल्यू से डिक्रीज होता है या फिर पीएल में डायरेक्ट चला जाता है और बुक वैल्यू से भी डिक्रीज हो जाएगा बैलेंस शीट में, बट कैश को इफेक्ट नहीं करता है. डेप्रिसिएशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैश बजट. सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी योर ऑप्शन नंबर बी हियर. इजी इनफ. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 says the auditor can be removed before the expiry of his term by which of the following. ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. देखो, ऑडिटर को अगर रिमूव करना है, हमारी कंपनी, हम शेयर होल्डर्स हैं, आप और मैं, हमें ऑडिटर को रिमूव करना है, तो मैं अप्रूवल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना पड़ता है. एक एमसीए में फॉर्म होता है, वो भरना पड़ेगा. अब इतना टेक्निकल नहीं जानना है हमको, ठीक है, कि फॉर्म नंबर क्या है. तो एमसीए में हम लोग एक फॉर्म अप्लाई करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी, बट उसके बाद स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा हमारी मीटिंग में. ठीक है, मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा. स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, इसका मतलब है कौन अप्रूव कर रहा है? शेयर होल्डर्स, क्योंकि 3/4 मेजोरिटी के साथ ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है. ठीक है, 3/4 ऑफ द वोटिंग मेंबर्स बेसिकली. ये नहीं कि 3/4 ऑफ ऑल द शेयर होल्डर मेंबर्स, ऐसा नहीं होता है. 3/4 ऑफ द वोटिंग मेंबर्स. मान लो 2 लोग नहीं आए हैं मीटिंग में, तो उनको काउंटिंग नहीं होगी 3/4 में कैलकुलेट करने के लिए. अगर 10 लोग दे रहे हैं, ठीक है, अगर 10 लोग दे रहे हैं तो उसका 3/4 निकाला जाएगा. तो 3/4 अगर हमें अप्रूवल मिल गया, और वो अप्रूवल कौन देगा? वो मतलब कौन पास करेगा? शेयर होल्डर्स पास करेंगे, मैं और आप पास करेंगे. तो इसका मतलब है कि ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर सकता. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ दे आर गोइंग टू basically give the notice to the shareholders that okay we have the meeting and this is the agenda of the meeting. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, वो डिसाइड करते हैं कि नोटिस देनी है सारे शेयर होल्डर्स को, और ये एजेंडा डिसाइड कर देंगे कि ये एजेंडा डिफाइन हुआ है इस मीटिंग के लिए, आप लोग आ जाओ. या फिर अगर पोस्टल बैलेट है या फिर जो भी तरीके हैं, ऑनलाइन है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है. बट इनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि ऑडिटर को रिमूव कर दें. वो अथॉरिटी मेंबर्स के पास ही होती है, दैट इज शेयर होल्डर्स. ठीक है, चलो, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. अब सेक्शन देखते हैं तो सेक्शन 140 है, बट आई डोंट थिंक सेक्शन इज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M3? अगेन इकोनॉमिक्स क्वेश्चन. M1 एंड M3 कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई ऑफ मनी का. सप्लाई होती है ना मनी की, बैंक इंजेक्ट करती है लिक्विडिटी. ठीक है, तो मनी सप्लाई जो हो रही है उसके रिस्पेक्ट में M1 और M3 पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि M1 और M3 में डिफरेंस क्या है. तो बहुत सारे मेजरमेंट के तरीके हैं मनी सप्लाई को, उन्हीं में से है M1, M2, M3 एंड M4. चारों के बारे में पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे. M1 क्या है? जो करेंसी नोट्स और कॉइन्स लोगों के पास हैं, वो ध्यान देना. डिमांड डिपॉजिट जो है बैंकिंग सिस्टम के पास, ध्यान दो, डिमांड डिपॉजिट. हाँ, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट. क्या सर डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? मैं बताता हूँ. मेरा सेविंग अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट है, जब चाहे हम निकाल सकते हैं ना. इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट. मतलब नाम से समझो, डिमांड डिपॉजिट. हम जब चाहे डिमांड कर सकते हैं अपनी मनी, बैंक हमको मना नहीं कर सकता. दिस इज डिमांड डिपॉजिट. तो जो हमारे पास कैश में मनी है और जो हमने डिमांड डिपॉजिट है हमारे बैंक में, वो सारी की सारी इंक्लूड होती है किसमें? M1 में. बात समझ आ गई? करंट हो चाहे सेविंग डिपॉजिट हो. और जो अदर डिपॉजिट है RBI के पास, सर अदर डिपॉजिट मतलब क्या? मैं बताता हूँ. जो गवर्नमेंट ने डिपॉजिट किए हैं RBI के पास, वो इंक्लूड नहीं करते हैं. ध्यान देना, ठीक है, मैंने जानबूझ के बोला, ध्यान देना. मैं देखना चाहता हूँ कितना अटेंटिव हो. अदर डिपॉजिट विद RBI में जो गवर्नमेंट डिपॉजिट कर रही है RBI के साथ, वो इंक्लूड नहीं करते हो, वो इंक्लूड नहीं करते हो. ठीक है, तो क्या इंक्लूड करेंगे? जैसे नबार्ड है, नबार्ड के पैसे अगर RBI में डिपॉजिटेड हैं तो वो इंक्लूड होंगे इसमें. अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने अगर डिपॉजिट कर रखे हैं तो वो भी इंक्लूड होंगे इस अदर डिपॉजिट में. फॉरेन बैंक्स हैं, उन्हें डिपॉजिट कर रखे हैं मनी अपनी RBI में, वो इंक्लूड होंगे. अच्छा सर, हमें समझ में आ गया. अब सर ये बता दीजिए हमें कि अगर जो बैंक डिपॉजिट करता है RBI के साथ, क्या उसको इंक्लूड करते हैं? नहीं, उसको नहीं करेंगे. जितना मैं बता रहा हूँ उतना नहीं करते हैं इंक्लूड. ठीक है, तो क्या बताया मैंने? जो अदर डिपॉजिट तो RBI हैं, उसमें ध्यान देना है कि जो
जो अदर इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके जो डिपॉजिट हैं आरबीआई के साथ, सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करोगे, या फिर फॉरेन बैंक के जो डिपॉजिट है आरबीआई के साथ उनको। अगर बैंक ने डिपॉजिट किए हैं मनी, या गवर्नमेंट ने डिपॉजिट मनी किया है आरबीआई में, वो कंसिडर नहीं करोगे एज डिपॉजिट में, वो मनी सप्लाई में नहीं आएगा, M1 में नहीं आएगा, ठीक है। M2 में क्या आएगा? अच्छा, एक और चीज़, M1 में हमने ध्यान दिया था कि डिमांड डिपॉजिट है, तो जो हमारे एफडी का पैसा है, जो मान लो मेरी एफडी है, आपकी एफडी है, क्या इसका जो हमारे पास जो हमने रुपए की एफडी की है, क्या ये इंक्लूड करेंगे M1 में? तो द आंसर इज नो, क्योंकि दैट इज नॉट योर डिमांड डिपॉजिट, दैट इज योर टाइम डिपॉजिट। इसका टाइम फिक्स होता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल। बात समझ में आती है? तो वो भी इंक्लूड हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब M2 में आते हैं। M1 में जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें रखोगे, साथ में जो सेविंग डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में, उन सबको भी इंक्लूड कर दोगे, हो जाएगा M2 में। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा हट जा रहा हूँ मैं, ताकि आप एक बार पढ़ भी लो, ठीक है। तो M2 में क्या आएगा? सारी M1 चीज़ें साथ में सेविंग विद द पोस्ट ऑफिस अकाउंट, ठीक है। अब M3 क्या है? M3 में सारी M1 की चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। अच्छा, ये जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ब्रॉड होता जाएगा, उतना ब्रॉडर हो जाएगा मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट। तो M3 में M1 की सारी चीज़ें तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ में हमारे जो एफडीज थे उन मनी को भी काउंट कर लोगे, उस मनी सप्लाई को भी काउंट कर लोगे। तो टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन दी M3, ठीक है। बात समझ में आ गई? M4 क्या है? M4 में सारी M3 की चीज़ें रख लो, और साथ में जो सेविंग बैंक अकाउंट था उसके भी सारे के सारे सेविंग्स रख लो, एक्सेप्ट योर NSC, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसको छोड़ के सारी सेविंग रख लो। तो जब सारी चीज़ें इंक्लूड कर लोगे तो हमारा आ जाएगा M4। बात समझ में आ गई? अब तो क्वेश्चन आराम से कर लोगे। क्वेश्चन क्या था? M1 और M3 में डिफरेंस पूछ रहा है, क्या डिफरेंस दिख रहा है? टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो हाँ, आंसर यही लिखा हुआ है, टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम इज द डिफरेंस बिटवीन M1 एंड दी M3। चलो आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एज पर दी कीन्स थ्योरी, मैंने कीन्स थ्योरी अभी बताई थी शायद शॉर्ट में। इन ब्रीफ आई हैव डिस्कस विद यू द कीन्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। कीन्स बहुत ही एक नंबर मतलब बढ़िया इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने बिल्कुल अप्रोच बदल दी थी कि कैसे सोचा जाता है इकोनॉमिक्स में। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ना, वो क्या बोलते थे, उनका वो ये बोलते थे कि जब सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, ये कहते थे क्लासिक इकोनॉमिस्ट, कि हमारी कंपनी है, जैसे एडुटाइप ही है, या फिर कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, शूज़ बनाने की है, बैडमिंटन की है, फुटबॉल की है, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये कहते थे कि सप्लाई अगर हम बढ़ाते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म या सर्विस प्रोवाइडर सप्लाई इंक्रीज करते हैं, तो डिमांड उसकी अपने आप बढ़ जाएगी, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे। पर कीन्स ने चैलेंज किया है, कीन्स ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, डिमांड क्रिएट्स सप्लाई। कीन्स ने कहा कि डिमांड अगर आप बढ़ाओगे, खूब एडवर्टीजमेंट कर दो, खूब इन्फ्यूज़ कर दो अगर मार्केट में मनी, अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई को कोप अप करना पड़ेगा, तब सप्लाई बढ़ेगी अपने आप, तब सप्लाई क्या कहते हैं, जो सप्लायर है वो बढ़ाएगा ना अपने आप, ताकि कोप कर सके उस डिमांड के साथ। तो इसने इकोनॉमिक्स को चेंज किया था पूरा। और इसने कीन्स ने ये भी कहा था कि अगर डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन मतलब वही ना कि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, अब डिमांड नहीं कर रहे हैं, और रिसेशन की बात है डिप्रेशन, तो जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो भी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रख नहीं रहे हैं, ना ही ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं। क्यों सप्लाई करेंगे जब है ही नहीं डिमांड, तो क्या सप्लाई करेंगे? कुछ बिक ही नहीं रहा है, सब एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है इन्वेंट्री में, कुछ नहीं हो रहा है इकॉनमी में, इकोनॉमी ठप पड़ चुकी है, तो क्या होगा? क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो ये था ना कि सप्लाई करते जाओ, डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन, सारे इकोनॉमिक्स की थ्योरी फेल हो गई थी। तो कीन्स ने कहा कि यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट इंजेक्ट करेगी अगर एक्स्ट्रा पैसा, तो डिमांड क्रिएट होगी अपने आप। तो यहाँ पे सरकारी नौकरी वाले बड़े काम आते हैं क्योंकि जब डिप्रेशन आता है, सरकारी नौकरी में क्या होता है कि सैलरी तो मिल रही होती है डिप्रेशन होने के बाद भी, तो उनकी वजह से डिमांड क्रिएट होती है। या फिर मैं एक लाइटर नोट में बता रहा था एग्जांपल, वैसे ये है, कीन्स ने ये बोला कि जो गवर्नमेंट है उसको इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा बहुत सारा पैसा इकॉनमी में, और इकॉनमी को रन करने के लिए, जैसे बजट के थ्रू रोड्स बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, बजट निकाल रही है, खूब सारा पैसा खर्च कर रही है। क्यों ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? क्योंकि इकॉनमी ठप है, डिमांड है नहीं, तो डिमांड गवर्नमेंट जनरेट कर रही है इन्फ्यूजन के द्वारा। और इससे क्या होगा, अब सप्लायर के पास सप्लायर को बनाना पड़ेगा, अब सप्लायर को बनाना पड़ेगा तो वो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट रखेगी अपने पास एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो उनकी इनकम जनरेट होगी, अब इनकम जनरेट होगी तो वो खुद डिमांड करेंगे। इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी और इकॉनमी चल पड़ेगी, और यही करना पड़ा था जब डिप्रेशन आया था। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ही मेरा डीप चला गया, कोई बात नहीं।
इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एज पर द कीन्स थ्योरी इज डिटरमाइंड बाय, ये इसने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को मना करके इफेक्टिव डिमांड की बात की थी कि इफेक्टिव डिमांड के थ्रू हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को रिलेट करते हैं और बढ़ाते हैं। अभी मैंने बताया ना कैसे बढ़ता है गवर्नमेंट की इन्फ्यूजन के द्वारा पूरी कीन्स इकोनॉमिक्स में। अभी इफेक्टिव डिमांड क्या होता है एक ब्रीफ में बता देता हूँ मैं। वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जा रही है, उसे कहते हैं वो एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को कीन्स ने इफेक्टिव डिमांड का नाम दिया था कि वो इफेक्टिव डिमांड है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इफेक्टिव डिमांड में ज़रूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो। अरे छोड़ो, इतना आगे नहीं जाएंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है नेक्स्ट क्लास में। इफेक्टिव डिमांड मैंने बता दिया कि ये हमारा था 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे आउटपुट मतलब इनकम और कंजम्पशन बराबर है, इनकम और कंजम्पशन बराबर है, तो ये 45 डिग्री की लाइन है। तो ये देखो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और ये हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है और ये गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज़ किया है। तो ये जहाँ पे पॉइंट है, ये पहले इफेक्टिव डिमांड ये था, अब गवर्नमेंट ने और इन्फ्यूज़ कर दिया पैसा, तो ये लाइन बढ़ गई हमारी उसकी डिमांड की या एक्सपेंडिचर की कह लो, तो ये बढ़ी, तो अब हमारा पॉइंट ये हो गया, तो ये इफेक्टिव डिमांड है। ठीक है, बात समझना, इफेक्टिव डिमांड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाएगी। मोटी बुद्धि समझना, ज़्यादा अंदर डीप घुसने की कोशिश नहीं करनी है अभी हमें फ़िलहाल। अभी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डीप जब क्लासेस करेंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट गिव्स पावर टू सेबी टू इशू ऑफ कैपिटल एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सेक्शन पूछ रहे हैं, सेक्शन तो मुझे वैसे पसंद नहीं, सेक्शन 24 इसका आंसर है वैसे। ट्रांसफर एंड इशू ऑफ शेयर की पावर सेबी के पास किस सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 24 है इसका आंसर। नथिंग टू एक्सप्लेन हियर, प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सेज ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट। तो ओपन जो इंटरेस्ट है हमारा, ये बेसिकली क्या दिखाता है, जो हमने ऑप्शन पढ़ा था ना पिछले कुछ क्वेश्चन में, तो ओपन इंटरेस्ट मतलब वो एग्जिट नहीं हुआ है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जिट नहीं हुए हैं, उसी को ओपन इंटरेस्ट का नाम दिया गया, ठीक है। अगर आउटस्टैंडिंग है कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिट नहीं हो रखे हैं, तो वो ओपन इंटरेस्ट बोल देते हैं इसको। तो ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट्स व्हाट? द नंबर ऑफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स नो, नंबर ऑफ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नो, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग यस, ठीक है। तो जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है ओपन इंटरेस्ट वही इंडिकेट करता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 सेज 8000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस, 5% इज द नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ। जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसमें अगर इनपुट्स हम रॉ मटेरियल दे रहे हैं 8000 यूनिट की दे रहे हैं, अब 8000 यूनिट की हम इनपुट दे रहे हैं, ये कोई ज़रूरी है क्या कि 8000 ही आउटपुट निकलेगा हमारा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ ना कुछ प्रोसेस में लॉस हो जाता है, कुछ ना कुछ उस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में लॉस हो जाता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस, जो कि एक्सपेक्ट करती है इंडस्ट्री या फिर फर्म, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। तो यहाँ 5% नॉर्मल लॉस है। तो 8000 यूनिट्स थी टोटल, 5% नॉर्मल लॉस था, 6600 यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो गई इतनी यूनिट हमारी। वर्क इन प्रोग्रेस जो है हमारा वो है 1000 यूनिट, जो कि अभी भी प्रोसेस में है। तो 6600 प्लस 1000 इज 7600। नॉर्मल लॉस कितना था? 5%। तो 5% का मतलब होता है 1/20 होता है ना। 1/20 अगर कर दोगे 8000 का तो कितना आ जाएगा? 400। ये सब मन में कर लेना क्योंकि बहुत आसान है। ये पता है ना, ये तो क्वांट्स में पढ़ा होगा कि 5% मैंने कैसे 1/20 निकाला, कुछ नहीं किया है। 5/100 किया 1/20, ये सब याद होने चाहिए क्वांट्स के लिए। अब पता नहीं मुझे क्वांट्स कैसी है आप लोगों की, बट ये जिसकी क्वांट्स अच्छी है उसको याद होने चाहिए। 33.33% इज 1/3, ऐसे करके सारे परसेंटेज याद होने चाहिए। 25% इज 1/4, 10% इज 1/10, 20% इज 1/5, इस तरह से पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैं कहाँ था, हाँ 400 यूनिट्स हमारी क्या थी? नॉर्मल लॉस हो गया। तो मैंने इसको ऐड करके देख लेता हूँ कि ये 8000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ आ रहा है ये 6600 प्लस 1000 इज 7600 प्लस 400 इज 8000। तो हमारा ये आ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल लॉस ही है। अब नॉर्मल लॉस कुछ नहीं है। तो ये तो इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है? WIP इज 1000 यूनिट विच इज 60% कंप्लीट। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट यूनिट क्या है। इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब पहले समझ लेते हैं कि हमने कितने यूनिट्स में खर्चा किया है इस प्रोसेस में, प्रेजेंट प्रोसेस में, ये बताने को बोल रहा है। तो 6600 यूनिट्स तो तैयार हो गई पूरी, तो उसमें तो पूरा खर्चा हुआ होगा, तो वो तो ऐड कर दोगे। बट इसके साथ साथ हमारा कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो 60% कंप्लीट हैं, मतलब 1000 यूनिट में पूरे 1000 यूनिट पे पूरा खर्चा नहीं हुआ है, खाली 60% ही खर्चा हुआ है ना। तो 60% निकाल दो 1000 का, 600 यूनिट्स, 600 यूनिट्स।
तो मतलब हमने 600 यूनिट्स के बराबर खर्चा किया है 1000 यूनिट के लिए, पूरा खर्चा नहीं हुआ, पूरा तैयार नहीं हुआ है। तो 600 इसमें ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा कितना 7200, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, 7200 इज द आंसर यार। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे देख लेना, कुछ है नहीं, मैंने जो बताया शॉर्टकट में ऐसे ही कर लेना, ठीक है, इतना लंबा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मशीन कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, टोटल मशीन कॉस्ट निकालनी है हमें, ठीक है। डेप्रिसिएशन वगैरह का कह सकते हो ये क्वेश्चन है, या फिर हाँ ठीक है। मशीन कॉस्ट है 15 लाख, कार्टेज लग रही है 2000, फ्रेट इज 25,000, इंस्टॉलेशन इज 40,000, टेस्टिंग इज 18,000। फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो हियर इज दैट मशीन कॉस्ट में क्या क्या आता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो तब ये क्वेश्चन कर लोगे। जब हमारी मशीन इज रेडी टू बी यूज्ड, ध्यान देना, when our machine is ready to be used, when it is in the desirable location and it is ready to be used, तब तक जो भी खर्चे हुए मशीन में वो सारी की सारी मशीन कॉस्ट में डालोगे। ऐसा नहीं है कि मशीन को खरीदने में जितना खर्चा हुआ खाली वही रहेगा, नहीं। मशीन जब तक रेडी नहीं हो जाती यूज़ के लिए तब तक उसके जितने खर्चे हैं, इतने खर्चे हुए हैं, सारे के सारे इंक्लूड होंगे मशीन कॉस्ट में ही, ठीक है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा। बेसिकली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंशिएट करने को बोल रहा है कि कौन से खर्चे को पीएल में डाल देंगे, पीएल मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, और कौन से खर्चे को बैलेंस शीट में डालेंगे, मतलब कौन से एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करोगे। बेसिकली क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दिस थिंग। तो टेस्टिंग ज़रूरी होती है तो ये इंक्लूड करोगे मशीन कॉस्ट में। इंस्टॉलेशन ऑब्वियसली ज़रूरी है, तब तक कैसे रेडी होगी मशीन। फ्रेट ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन के बिना कैसे मशीन आएगी प्रेजेंट लोकेशन में। कार्टेज ज़रूरी है, मशीन कॉस्ट तो ऑब्वियसली ज़रूरी है। तो सारी कॉस्ट को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, ये ऐड कर देना सारी चीज़ों को, आ जाएगा 15.85 लाख, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 सेज सेल्स यूनिट इज 1,62,500, टोटल एक्चुअल कॉस्ट इज 3 लाख, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट इज गिवन टू यू, सेल्स यूनिट दी हुई है, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट इज 87,000 एंड इट इज इन द लाइन विद द बजटेड कॉस्ट। बजट कॉस्ट जितनी हमने रखी थी उतनी ही कॉस्ट हमारी एक्चुअल फिक्स कॉस्ट की आई भी है, ठीक है। ओके, अब टोटल एक्चुअल कॉस्ट इज 18,000 मोर देन दैट ऑफ बजटेड कॉस्ट, बट एक्चुअल कॉस्ट जो टोटल एक्चुअल कॉस्ट है वो 18,000 बढ़ गई है बजटेड कॉस्ट से। तो क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन ध्यान से देखना, आसान है और थोड़ा लॉजिक लगेगा इसमें। बजटेड वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट की, तो हमें क्या करना है, देखना पड़ेगा कि बजटेड वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो बजटेड वेरिएबल कॉस्ट हमें निकालनी है, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 3 लाख है, ध्यान देना। और ये 3 लाख किसका बना होगा, तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट है 3 लाख किसका बना होगा, एक्चुअल कॉस्ट का बना होगा, मतलब एक्चुअल फिक्स कॉस्ट का बना होगा। तो यहाँ मैं FC कर देता हूँ, और वेरिएबल कॉस्ट का बना होगा, इजंट इट, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट और एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट का। तो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट हमको ऑलरेडी दे रखी है 87,000, वेरिएबल कॉस्ट देखो हमको नहीं दे रखी है, दे रखी है कहीं, तो एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट है कहीं नहीं दे रखी है, तो वो तो यहाँ से निकल जाएगी। तो 3 लाख माइनस 87,000 करोगे कितना आएगा, तो 3 लाख में से 80 माइनस करोगे तो आ जाएगा 2,20,000, ठीक है। अगर 80 करते हो तो, और अगर 7 और कर दोगे तो 2,13,000 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, मैंने मन में किया है, 2,13,000 है ना, तो यह आ जाएगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारी एक्चुअल की, ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया, आगे बताइए। मैं बता रहा हूँ, देखो एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल एक्चुअल कॉस्ट इज 18,000 मोर देन दी बजटेड कॉस्ट। जो एक्चुअल कॉस्ट थी ये वाली, ये कितनी ज़्यादा थी, 18,000 ज़्यादा थी, और फिक्स कॉस्ट तो बराबर है। इसका मतलब जो चेंज हुआ होगा 18,000 में वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से हुआ होगा, मतलब ये जो ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 18,000 ज़्यादा है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट के कंपोनेंट में। बात समझना ध्यान से, फिक्स कॉस्ट तो बराबर है, इसका मतलब है जो भी ये 3 लाख में है, ये कह रहा है ना कि 18,000 ज़्यादा है ये बजटेड कॉस्ट से। ये जो डिफरेंस आ रहा होगा किसकी वजह से आ रहा होगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। मतलब जो बजटेड
वेरिएबल कॉस्ट है वो 18,000 कम होगी इससे। तो 18,000 अगर माइनस करोगे 2,13,000 से तो वेरी इजी 1,95,000 है ना। तो हमारे पास यहाँ लिख देता हूँ, बजटेड वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2,13,000 माइनस 18,000 दैट इज 1,95,000 इजंट इट। ठीक है, तो बजटेड वेरिएबल कॉस्ट अगर हमारे पास आ गई तो क्वेश्चन में बचा गया 1,95,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स, यूनिट्स वी हैव इज 1,62,500। अब तो ये कर ही लोगे 1625, कैलकुलेटर से भी कर लोगे तब भी चलेगा क्योंकि कैलकुलेटर दिया होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। 1 पॉइंट के हमारे 2 ऑप्शन है, नहीं 3 ऑप्शन है, तो एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ मन में निकालने की। इसका 100% होता है 1625 और ये अप्रॉक्सीमेटली 20% एक्स्ट्रा है, तो 1.20 तक आएगा। देखते हैं क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर डी ही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये होमवर्क क्वेश्चन है हमारा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ड्यूटीज आर ट्रांसफर टू व्हाट। ये आप लोगों को आंसर करना है कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। देखता हूँ किसका सही होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। चाहे फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो थी पहले था उससे ट्रांसफर हो गया है सारी की सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू विच बॉडी, आरबीआई, सेबी, एनपीसीआई, एसबीआई और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हमने आज कितने क्वेश्चन कर लिए, 15 क्वेश्चन किए। उस 15 में से आप लोग के कितने सही हुए या कितने आप लोग को अंडरस्टैंडिंग अब आ गई है बहुत अच्छे से, वो आंसर कर देना मुझे कि 15 में से कितने मार्क्स आ गए या कितने में आप लोगों को अब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ गई है वो। और ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।